हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था और कल का भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया सिम्टम्स जो हैं आज के एपिसोड में दिखाए गए हैं। तो अनुज अनुपमा एक साथ खुश, बड़ी देर बाद ये मिरेकल हुआ है। तो मजेदार था एपिसोड और आपके रिव्यूज भी मजेदार हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखते हैं पहले एबिगल का वीडियो। नमस्ते अंजू मैम और मेरे सब दोस्त को नमस्ते। मेरा वीडियोस और रिव्यूज पसंद करने के लिए सबको धन्यवाद। और सुची जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड बर्थडे। और अंजू मैम, फीडबैक के लिए धन्यवाद। और मैं हमेशा आपका वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी और अनुपमा के लिए भी बहुत हैप्पी हुई। आज मेरा एस्मा बिल्कुल अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है। So the episode starts with Shruti. Shruti was calling for help. The nurse had gone on a break, so she was trying to call Anupama, but then she stops and she goes to take water and she falls down. So then Adya hears the noise because Adya thinks of, then she sees the food which Anupama keeps, then she says, I don't want to eat her food also. And she runs towards Shruti and tries to help Shruti, but then Anupama also sees this, and Anupama picks her up with difficulty, puts her, and then Adya again puts all the blame on her and pushes Anupama. Like I kept saying in all my videos, that Adya को panic attack नहीं है, ये trauma नहीं है. This is mental disorder. Because I've gone through trauma, like I just shared yesterday my story, that what happened to me when I went to trauma, and this is not how you behave when you have trauma. Anyway, somehow Anupama, and then Adya starts getting panic attacks, and she starts tearing the pillow, and she gets rage on Anupama. Then Anupama takes care of her. Anuj is in the car, worried. He's trying to call the house, and then finally Anupama calls him and tells him, don't worry, nothing is okay. And then she says that she will tell him when he comes back home. Yeah, so then Anupama is in the kitchen trying to prepare something, but when she tells Anuj, don't worry, she thinks that he's driving, she doesn't want to trouble him. So Anupama is always thinking about everybody, but nobody's thinking about her. And then back at the Shahs, they are all preparing for Dimpy's wedding. Titu comes quietly at night to meet Dimpy, and there's a little love moment, and he's also promising, like Anuj promises, I'll be this, I'll do that after marriage. All these promises. Yeah, then when Anuj comes back, Adya is again telling Anuj that why is she here, she cannot take care of Shruti, ask her to leave. And then Anuj is explaining to her that you should not underestimate people or doubt people, should give them the benefit of doubt. And poor Anupama, she's standing by the door and listening. Actually, this Adya character is going beyond her limits. She hates Anupama a lot. Now, this is not trauma. However, people will argue with me or disagree with me, but I am totally saying she has a mental disorder, and Anuj has pampered her so much that she thinks she can do anything she wants. Yeah, then then after that, Anuj comes out of Adya's room, and then he apologizes and says, I'm sorry, for
how she behaved. Now you're saying sorry, Anuj. You should have addressed Adya's panic attacks or trauma, whatever, 5 years ago. What were you and Shruti doing 5 years ago? Now you have dropped everything on Anupama's head and you're relaxed, thinking everything is going to be back to normal. Yeah, then Anupama says, no, it's my fault, it's okay. I understand. And then she'll say, I have to go, I have some important work. And Anuj will think that she's saying she wants to leave and go because Adya was behaving like that. And, he'll say, no, I said sorry, right? So she'll say, no, I have some work. Deepu's called me, so I am just going to go. Then he'll say, oh, why am I feeling bad that, Anupama is going to meet Deepu? She has her own life and everything. See, that is his misconception. He still thinks that Anupama is having some feelings for Deepu. But as the track is going, I'm a little bit worried. Now, Deepu is waiting to express his feelings to Anupama. So, as the observation and knowing the character Anupama, I know that she is going to feel bad that she will have to reject Deepu because she has taken him as a very good friend and a guide and a philosopher, and knowing that he loves her and she has to reject him, she will feel bad again over there. And then she'll blame herself also again. So, let's see. Yeah, then, it goes back to Shah's. Bha is making a list of things they need for a wedding. And Babuji comes in, and there's a sweet little moment between Ba and Babuji. And then Vanraj also comes, and I think Ba starts talking about jewelry. And Vanraj just leaves. So now Babuji is doubting that Vanraj has some devious plans up his mind. And back with Anupama comes to Deepu, and she will talk to him, and then he will say that, all the audiences and everybody, he'll show her social media, and he'll say, everybody have voted for you and all are supporting you. And she'll, then she'll be happy, but then he'll say, they have given you a wild card entry, and she'll be so happy. She will be dancing over there. And she's like overjoyed, Anupama, that she has a second chance. And she'll say, I'll prepare very well this time, focus very well. And then he'll say, you have only 2 days. And then she'll say, 2 days. Oh, she's excited. And Deepu wants to express his feelings to her, but then he'll say, this is not the right moment. Once Anupama wins the competition, he will express his feeling. This scene is not going very well. I don't know what the directors have up their mind. Yeah, so then Anupama is back at, Anuj's house. She's preparing some nice sweet dish. It's because she's very happy. She's got wild card entry, and she's dancing and she's singing. There's a song playing. Anuj is watching her. He wants to say something, but he comes and scares her from behind. And he'll, say he's sorry. He saw her, celebrating, so he wanted to congratulate her. Went to the pre-cap. And in the pre-cap, I actually didn't really understand. Her dance teacher, friend, what's her name? Dhia. I think she's telling her Anupama about, 26 years of love and, what would Adya think now. I think she's trying to, make Anupama realize that if she goes back to her love Anuj, it will not be good for Adya. I think that is what she was saying. And look at this Adya. She will tear Anupama's recipe book. So that's what I'm trying to say, that this girl does not suffer from any trauma or panic attack. She has a mental disorder, and basically this is tantrums. She hates Anupama. And this is not going, I'm really fed up of seeing this character of Adya. Stop it. She's a 12-year-old girl. She's so pretty. And you're making a 12-year-old pretty little girl behave like a vamp. Anyway, every day we are getting to see something new, but I just hope that the Man couple track is going to be good and they are going to reunite, but you never know what the direction team are planning. So that is all for today, Anju ma'am. Thank you once again for your feedback. Thank you all for loving me, commenting and encouraging me. Good night. Bye-bye. थैंक यू सो मच अभी आपने रिव्यू के लिए। और आप अस्थमा की वजह से थोड़ा आपको तकलीफ हो रही है, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। और जिस दिन आप नहीं कर पाए तो कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है, आपका मन करे, आप इजी फील करें तो ही आप रिव्यू भेजिए। बीमारी की हालत में
ऐसा मत कीजिए क्योंकि कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए आपका अस्थमा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो बाकी आपने जो कहा है ट्रॉमा के बारे में, मैं भी इस बात को लेके एग्री करती हूँ। पैनिक अटैक मतलब, अटैक का मतलब होता है कि अटैक आना। एक होता है कि पूरे दिन में कभी एक बार पैनिक अटैक आया, कभी 2-3 दिन बाद आया, महीनों बाद आया, कि इसको पैनिक अटैक आते हैं। यहाँ पे तो मतलब पैनिक डे है, उसका तो अटैक खत्म ही नहीं होता है। जब भी देखो वो बदतमीजी से ही बोलती, चाहे वो अनुज हो, चाहे वो अपना अनुपमा हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ बदतमीजी से ही आद्या बोलती है। तो उसकी हर बदतमीजी की बातों को पैनिक अटैक के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कुछ और मेंटल डिसऑर्डर है, ये पैनिक अटैक या ट्रॉमा नहीं है। तो मैं भी आपसे बिल्कुल 101% एग्री करती हूँ, क्योंकि ऐसा ही दिखता है कि हर वक्त एक ही नेचर डिपिक्ट करती है वो। सिर्फ एक बार जब परी के साथ उसमें थी, जो टेररिस्ट आए थे स्कूल में, तब थोड़ा सा उसका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया था, या फिर श्रू के साथ कभी कभी, मगर बाकी सब जगह पे वो सेम ही है। तो ये क्या पैनिक अटैक है? ये तो पैनिक डे हो गया, अटैक तो नहीं हुआ। तो खैर, आपने अच्छी ऑब्जर्वेशन बताई है और आपको भी ये एक्सपीरियंस है, तो आपने अच्छे से इस चीज को फील किया है, तो थैंक यू सो मच एबी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र इतने इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्हें मेरा ऑडियो पसंद आया उन सबको थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा, ये लड़की खाना फेंकने जा रही थी। श्रुति को आवाज़ लगा देनी चाहिए थी अनुपमा को। ये नर्स घर पर भी चाय कॉफ़ी पी सकती थी, बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। ये लड़की ने देखा कि नर्स नहीं है, नर्स को बोलना था, लेकिन नहीं, इसे तो अनु पर ही इल्ज़ाम लगाना है। सही कहा श्रुति ने कि अनु नहीं होती तो आज श्रुति के साथ कुछ भी हो सकता था। इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, नर्स को इसलिए रखा है कि वो पेशेंट का ध्यान रखे, उसे अकेला ना छोड़े, छोड़ के जाना, सॉरी ना छोड़े, जाना है तो बताकर जाना चाहिए था। लो, टीटू आधी रात को आया है डिम्पी से मिलने। अंश गिरने वाला होता है, टीटू पकड़ लेता है। देखना टीटू, डिम्पी वनराज की चालाकी को समझो और दोनों मिलकर उसका सामना करना। अनु ने छुपाया कि श्रुति गिर गई थी, आने के बाद ही बताएगी। हाँ कपाड़िया जी, अनु ठीक है। आद्या को पैनिक अटैक आया और अनु ने संभाल लिया, लेकिन उसने अनुज को नहीं बताया। जैसे हर बार श्रुति अनुज को ही कॉल कर देती थी, वैसा अनु ने नहीं किया। ये फर्क है अनुपमा और श्रुति में। दीपू जी, ये गलती मत कीजिएगा। इन इतने सारे सवाल एक साथ अब मिलने बुलाया है। ये कैसा बाप है जो बेटी की एफडी तोड़ने जा रहा है? ये कैसा पति है? कौन सा पति जिसने आज तक एक भी जिम्मेदारी निभाई है? चलो, कम से कम अनुज ने छोटी को समझाया तो अच्छा लगा। अनु ने कुकीज बनाए छोटी के लिए। अनु ने कहा मुझे जाना है। अनुज को लगा कि अनुपमा जाना चाहती है। क्या बात है, अनुज को जलन हो रही है। कपाड़िया जी, अनु की अपनी लाइफ है, वो जो चाहे कर सकती है, अनुज का कहना। दीपू जी ने कहा कि पूरा देश आपके साथ है। टिफिन भेजने की वजह से भी उसे बहुत सपोर्ट मिला है। सभी इन्फ्लुएंसर भी वीडियो बनाई है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं कि आपको एक चांस मिलना चाहिए, आपको दूसरा चांस मिलना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि डिसक्वालीफाइड होने के बाद उसी कंटेस्टेंट को दोबारा कंपटीशन में दोबारा बुलाया है। हाँ अनु, अब तुम्हारा सपना पूरा होगा। आज अनु को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। कंपटीशन के लिए 2 दिन बाकी है, सिर्फ 2 दिन। हाँ, अनु को आद्या का पैनिक अटैक, श्रुति का गिरना, वो सब याद आ रहा है। दीपू जी अपनी बात नहीं बता पाए। अच्छा हुआ आपने नहीं कहा, वरना दोस्त को खो बैठते। बापू जी बाकी नोक-झोंक अच्छी लगी। बा शादी के सामान की लिस्ट बना रही है। बापूजी ने पहली बार सही कहा कि आपका दिमाग घुटनों में है। घुटने के दर्द के बाद भी वाह अंश, अच्छा काम किया है।
वह अनुज अनु को खुशी में नाचते हुए छुपकर देख रहा है। अनुज रोका क्यों नहीं, क्लैप कर दो। आज ये सीन देखकर वो सीन भी याद आ गया जब अनु अनुज को अपने घर लेकर गई थी, जब उसने मुक्कू को सब कुछ दे दिया था और दूसरे दिन जब सुबह उठती है और इसी तरह डांस करते हुए अनुज के पसंद का खाना बनाती है और अनुज इसी तरह छुप कर देखता है। कॉन्ग्रेचुलेसन अनु कहकर अनु अनु को डरा दिया। सो क्यूट सीन था। आफ्टर लॉन्ग टाइम अनुज की जान अपनी अनु में है। अनुज को सिर्फ अनु और आद्या की चिंता है। आज तक देखने की भी कोशिश नहीं की अनुपमा जिंदा है या मर गई, और अब देखो। और वैसे भी अभी एक दिन पहले ही अनुज ने कहा था कि बस श्रुति और आद्या उसकी आंखों के सामने रहे, खुश रहे और उसे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर कपाड़िया जी, आप श्रुति की ही सेवा करें, क्योंकि आपकी बेटी को भी श्रुति जैसी माँ ही चाहिए। इसलिए उसका केयर करना अब दिखावा लगता है अनु के लिए। वो अनु की चिंता इसलिए कर रहा है क्योंकि श्रुति की सेहत ठीक नहीं है और आद्या डिस्टर्ब है। इस वक्त अनुपमा की ज़रूरत है। श्रुति और आद्या को खुश रखना चाहता है अनुपमा की मदद से। अनुज, अगर तुमने और श्रुति ने इन 4 सालों में उसे ट्रीटमेंट दिया होता, उसे समझाया होता, उसकी गलतफहमी दूर की होती, तो तुम्हें इतना डरने की आज ज़रूरत नहीं पड़ती। आद्या कहती है अनु श्रुति की केयर नहीं हो पा रही है, उन्हें वापस भेज दीजिए। तो तुम क्यों अपनी श्रु को छोड़कर अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर बैठी थी? उसके पास ही बैठती। और वैसे भी अनुपमा श्रुति के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई है और ये काम उसका नहीं है। हाँ, और तू जो बड़ी उसकी केयर करती है, जब देखो अपने बारे में सोचती रहती है। अनुपमा को आए बस कुछ मिनट ही हुई है और ये मैडम चाह रही है कि वो सब कुछ समझ जाए। खुद ही समझ लेती, नर्स की भी क्या ज़रूरत है। अनुज, तुम्हारी बेटी इंसल्ट करती है और तुम माफ़ी मांगते रहो। हाँ, सही कहा अनुज। अपनी बेटी का पागलपन जानते हुए भी अनु को अकेले छोड़ गए। अनु के घर आने से अनुज में कॉन्फिडेंट आया है। वह कोशिश तो कर रहा है आद्या को सच दिखाने की, लेकिन अनुपमा की गलती क्या है, गलती है भी या नहीं, ये तो देख लो। कभी कभी गलती करते नहीं हो जाती है। वाओ, पहले जान लो कि उसने गलती से भी गलती की है या नहीं। 5 साल पहले भी जानने की कोशिश नहीं की थी, आज भी नहीं की, बस मान लिया कि गलती हुई है। कितनी अच्छी सोच है। कितना अच्छा और सच्चा प्यार है बाप बेटी का। अनु के लिए बेटी को प्यार से समझाओ, चाहे जितना भी जलील करो अपनी माँ को, लेकिन बीवी बिना किसी गलती के मरने के लिए छोड़ दो। बीवी बिना किसी गलती के लिए मरने के लिए छोड़ दो और पलट कर देखो भी मत जब तक जरूरत पड़े। उसकी माइंड ब्लोइंग नौकरानी लेकर आए हैं अनुज तेरी माँ श्रुति के खातिर। वैसे भी तूने कहाँ अपनी मम्मी को समझा है। 2 बार जान बचाई है अनुपमा ने छोटी अनु की, पर आज भी छोटी अनु को ये याद है मुझे पहले नहीं बचाया। और अनुज ने आज तक छोटी अनु को सच्चाई समझाने की कोशिश नहीं की और अपनी मम्मी आद्या के लिए श्रुति बहू लेके आना प्रॉमिस भी किया है। जिस बच्ची के लिए अनुज अनुपमा, कहीं ना कहीं श्रुति भी इतनी कुर्बानी और दर्द सह रही है, क्या उसे इस बात का थोड़ा सा भी एहसास होता है क्या? भोलू राम, आप क्या करते हैं? अनुज सोच सोच के पागल हो रहा है। आखिर क्या हुआ है? अनुपमा खुश क्यों है? डरा दिया आपने अनु को। अनुपमा को आए कुछ ही मिनट हुए और ये कह रही है वो श्रुति का ख्याल नहीं रख सकती है। अगर अनुपमा नहीं होती तो श्रुति जमीन पर ही पड़ी रहती और ये बस रोती रहती। जिंदगी भर उसके पास बैठे रहने से वो ठीक नहीं होगी और ना ही श्रुति के पास बैठे रहने से जिंदगी आगे बढ़ेगी। मन बुद्धि है आद्या। अनुज के परफेक्ट फैमिली में कहीं फिट नहीं होती श्रुति, फिर भी आद्या को श्रुति चाहिए।
और आपका सुबह का रिव्यू सुना। सारथी ही छीन लिया अनुपमा से उसका जलन से भरी आद्या ने, मगर फिर भी ना हरा पाएगी अपनी माँ को। दिया ने अनु को सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल सही किया। अब अनु सोचे कि ये शादी अनुज और आद्या के लिए गलत डिसीजन है। इस लड़की ने बाकी दी हुई डायरी फाड़ दी। ये मेकर्स का प्लान है अनुज श्रुति की शादी करवाने का। श्रुति की कंडीशन ऐसी कर दी है अनुज उसे छोड़े नहीं। आद्या ठीक हो भी गई, वो श्रुति को जाने नहीं देगी। दिया ने सही कहा। अगर अनुज और श्रुति की शादी हो गई तो चलेगी नहीं। ये तो हम सब कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती की शादी कब तक चलेगी, पर ये ना तो आद्या समझ रही है ना ही श्रुति। ये बात अनुपमा से ज्यादा अनुज को समझने की जरूरत है। आद्या और श्रुति अपना साथ देख रहे हैं, लेकिन अनुज को तो अनुभव है शादी का, उसे क्यों समझ नहीं आता। अनुपमा समझ भी जाए तो क्या करेगी। अगर शादी होने देगी तो गलत, और बच्ची के खातिर शादी रोकने की कोशिश करेगी तो भी गलत। मतलब शादी हो या ना हो, फिर एक बार अनुपमा की ही गलती। ये अच्छा है मेकर्स का, सब कुछ करे पति बाइज्जत बरी, और कोई गलती ना होते हुए भी पत्नी गुनहगार। एक तरफा प्यार नहीं चलता। शादी कैसे चलेगी। अनुज ने 26 साल में शादी नहीं की, 4 साल साथ रहकर शादी नहीं की। ऐसे रिश्ते निभा ही नहीं सकते और चल भी नहीं सकते। क्या बात कही है दिया ने, हम सबके दिल की बात कही है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों कैसा बाप है जो अपनी बेटी के पैसे एफडी तोड़ रहा है। जिस तरीके से पाखी ने अपनी बेटी की एफडी तोड़ी, अब ये तोड़ रहा है। छी, कहते दोनों भाई बहन है तो पता नहीं। और आद्या को क्या लगता है उसके पाप श्रुति के साथ खुश है। और आज जिस तरीके से अनुपमा ने आद्या को संभाला, अगर इसकी जगह श्रुति होती तो वो नहीं संभाल पाती। वो तुरंत अनुज को फोन लगाती, लेकिन अनुपमा ने ऐसा नहीं किया। अनुपमा ने श्रुति और आद्या दोनों को ही संभाला। और ये लड़की को क्या लगता है, उसके माँ के हाथ की कुकीज खा रही है और वो कहती है पॉप्स आपने आज तक इतनी अच्छी नहीं बनाई। तो इतनी तो अक्ल चलाती कि ये तुम्हारी माँ के हाथ की कुकीज है, बचपन में खाई तो भूल गई। बचपन की बहुत सारी बातें तुम आज तक नहीं भूल पाई हो, तो ये बात भूल गई कि तुम्हारी माँ के हाथ का स्वाद कैसा है, वो कैसा खाना बनाती है। और ये कुकीज तो उसके पसंद की थी। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। मैं आपके आगे और रिव्यू देखूंगी और उस पर कल कहूंगी। बाकी आज का जो क्यूट और ब्यूटीफुल सीन था वो मान का था, जो अनुज छुप के अनुपमा को देख रहा था कि वो डांस करके केक बना रही है, और पीछे से आके डरा भी दिया। अब कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना भी मत तड़पाना अनुपमा, नहीं तो हमारा अनुज कपाड़िया जी रोल देंगे। पहले ही टेंशन में तो आ ही चुके हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। और महिमा प्लीज अपना ध्यान रखो और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है तुम्हें। तुम खुद स्ट्रांग हो। तुम ही कहती हो अनुपमा से तुमने बहुत कुछ सीखा है, और तुमने इतनी बड़ी जंग लड़ी है खुद की बीमारी की। अब क्यों डर रही हो, हम सब तुम्हारे साथ है, ठीक है। थैंक यू एंड आई लव यू महिमा। बाय अंजू जी। और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें अंजू जी से भी तुम उन्हें दीदी मानती हो, उनकी बात सुनती हो, तो प्लीज उनकी बात सुनना और मानना भी, ठीक है। बाय गाइस एंड गुड नाइट। सही कहा ख्याति जी। अनुज रुका क्यों, क्लैप कर दो। दिल तो उसका अंदर से बाहर से सब जगह से क्लैप ही कर रहा था कि बड़े देर बाद उसने ये वाला सीन देखा कि अनुपमा रसोई में है, खुश है और कुछ बना रही है। जो बना रही है वो अनुज का फेवरेट है। तो बहुत बढ़िया, और आपका रिव्यू भी बहुत बढ़िया है ख्याति जी। और जैसे आपने कहा शुरू में भी आपने बताया है कि अनुज अनुपमा को खुश देख के खुश हो रहा है, और अनुपमा बड़ी देर बाद खुश हुई है क्योंकि उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री में एंट्री मिल गई। ये तो बहुत बढ़िया रिव्यू है। बाकी वो बापू जी वाला सीन तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसे हल्के फुल्के सीन तो मजेदार था आपका रिव्यू। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो में हमने देखा कि
श्रुति गिर जाती है, वो अनुपमा की मदद नहीं लेना चाहती इसलिए कि अनुपमा आद्या के लिए आई है, परेशान नहीं करना चाहती और नर्स भी नहीं है। ये आवाज़ सुन के आद्या भी दौड़ी चली आती है, जो उसके हाथ में दलिया वाली डिश होती है, अनुपमा ने बनाने ली हुई चीज़ को वो खाना नहीं चाहती है, पर कान्हा जी ने गिरने फेंकने नहीं दिया उसे, वो वहीं रखती है और उसके पीछे अनुआ श्रुति की तरफ भागती है। अनुपमा भी यही सेम आवाज़ सुनती है, तो उसको लगता है आद्या के साथ, तो पहले वो आधे के पास थी इसलिए वो थोड़ा लेट पहुंची वहाँ पे, पर उसने संभाल लिया, श्रुति को बेड पे लिटा भी दिया और उसके बाद उसको कहा कि मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, पर देखा आद्या को पैनिक अटैक आ चुका था। आद्या बहुत ज़्यादा पैनिक था, उसने घबरा गई अनुपमा की ये सब तो जब फिर उसको बड़े मुश्किल से हैंडल भी करती है, कंट्रोल करती है उसके पैनिक अटैक को और श्रुति को भी दिलासा देती है। तो यहाँ फिर आज श्रुति गलत नहीं लिखी, यानी कहीं भी वो निगेटिव नहीं दिखी, अभी वो केयर करते हुए दिख रही है, आद्या के लिए परेशान है और ठीक है अभी बोलेंगे। बट यहाँ पे फिर अनुपमा यानी किचन में दिखती है, तो उसको देखते हैं अनुज इधर बहुत परेशान है, उसको अलग अलग खराब खराब ख्याल आ रहे हैं, कॉल कर रहा है घर में पर कोई कॉल नहीं उठा रहा है, अनुपमा भी नहीं उठा रही होती। तो फिर देखती कि अनुज के इतने सारे मिस कॉल, तो वो रिप्लाई करती है अनुपमा और बताती है कि जो कि सब ठीक है यहाँ पे, वो नहीं चाहती परेशान करना अनुज को, क्योंकि ड्राइविंग कर रहा होता है। तो फिर बाद में घर पे आके बताऊंगी। फिर यशदीप का भी कॉल आ जाता है, यशदीप का कॉल आ जाता है, तो यशदीप कहता है कि कुछ कहना है। अनुपमा कहती है फिलहाल घर में कोई नहीं है, अनुज आ जाएंगे तो फिर मैं आऊँगी। और इधर फिर वनराज का भी घर का बोल देते हैं कि यहाँ पे हमने देखा टीटू और डिम्पल की बातें सुनी, उसमें बहुत कुछ समझ में आता है कि समर को एक तो बचाया गिरते हुए, वो एक है कि वो एक लास्ट मोमेंट में कुछ होने नहीं देगा समर के साथ, वो भी दिखाते हैं। और यहाँ पे दोनों की बातों से लगता है कि जैसे हम लोग देख देख के एक तो इतना तो समझने लगे कि शो में ऐसे डायलॉग जब डालते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कुछ होता है। जैसे इसका कहना कि मैं अच्छा बेटा बनूंगा, अच्छा पति, सॉरी अच्छा पति, अच्छा पिता और अच्छा घर जवाई बनूंगा तो फिर डिम्पल का भी कहना है कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ सकती, तो दुनिया छोड़ सकती मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। तो ये डायलॉग जब होते हैं ना, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कहानी भी होती है। और जो वनराज करने वाला गेम प्लान कर रहा है, वनराज बहुत शातिर खेल खेलने वाला है, जो मेहमानों को बुलाना नहीं चाहता शादी में, हमने आज और बापूजी की बातों से पता चला। और फिर बापूजी थोड़ा समझ तो रहे कि वनराज कुछ गलत कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो दिख रहा है इतना आसानी से मान गया, तो बापूजी को अलर्ट रहना जरूरी होगा, जरूर ये तुम्हारा बेटा गलत ही करने वाला है। तोशु के लिए बोल देते हैं कि तोशु वही उसकी हरकत है, आज जैसे एफडी की बात कर रहा हो, पैसे ढूंढने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली अनुपमा कंपटीशन से जाएगी तो वो पैसे मांगेगा ही मांगेगा। डिम्पल और उसकी नोकझोंक, इंडिया जाने वाली बात भी करे कि इंडिया शादी में भी जाना है, तो बहुत कुछ है। और फिर अनुपमा को जब पता चलता है यशदीप से कि उसका वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, उसको फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 दिन बाद कंपटीशन है, फाइनल राउंड है, तो अनुपमा थोड़ा सा घबरा भी जाती है, फिर संभाल भी जाती है और बड़ी खुश है, बड़ा अच्छा लगा। पर उसका आज ध्यान नहीं था यशदीप को कि यशदीप ने उसे क्या ये कहने के लिए बुलाया था, फ़ोन पे भी हो सकता था, पर वो अपनी खुशी में थी और यशदीप बता नहीं पाया, अगले कंपटीशन जीतने के बाद बताऊंगा, उसने ऐसा कहा। और अच्छा हुआ नहीं बताया, तो नहीं तो अनुपमा के लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ थी, तो भी घबराए ने, डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। और नेक दिल से अनुपमा स्पाइस एंड चट्टी को बचाना चाहती है, बाकी लोगों को जिनकी जॉब गई है उनको जॉब मिल जाएगा, ये अच्छे ख्यालों से वो सोच के साथ कंपटीशन जीतना चाहती है, तो डेफिनेटली ये भी ख्वाब पूरा होगा, अनुपमा का सपना पूरा होगा, अनुपमा जीतेगी ज़रूर। यहाँ पे वो खुशी मनाती, सेलिब्रेट करना चाहती है अनुपमा, जो छोटी छोटी खुशियाँ हमको दिखाते हैं, तो वो हलवा बनाती है, उसका केक वगैरह, तो अनुज देखता है। अनुज इधर ये भी एक सीन दिखाया, वो भी अच्छा लगा कि आद्या को जब वो घर पे आके समझाता है कि अनुपमा, वो कहती है कि अनुपमा को यहाँ मत रखिए, कुछ नहीं कर पा रही है, श्रुति के लिए कुछ नहीं कर रही, तो वो कहती है कि बेटा गलती कोई करता नहीं, हो जाती है ना। अब बहुत अच्छे उदाहरण से उसके बचपन की वाली बात उसे याद दिला के उसको समझाता है, तो बेटी कहती है भाई कि वो तो आप मुझे डिफेंड कर रहे हो आप उनको हमेशा, तो कहता है मैं सच को भी डिपेंड करता हूँ, आप ये क्यों बोल रही हो। ये बहुत खास बड़ी बात है कि अनुज को अनुपमा की मौजूदगी में ये हिम्मत और ये बोल कहता है, नहीं तो जब भी अभी 5 साल तक अनुपमा उसके पास नहीं थी, इसलिए आद्या को संभाल नहीं पाया, आद्या को समझा नहीं पाया, बस वो पैम्पर करते गया। और जो उसको है ना एक
उसको ऐसा लगता था कि इसको जो बोलूँगा करते जाऊँगा तो आद्या खुश रहेगी, अच्छी रहेगी इस चक्कर में। पर आज वो सही गलत बता पाया, अच्छा लगा वो। तो ये सब अनुपमा की मौजूदगी का कमाल है। दूसरी बात है कि इधर वो यशदीप, हाँ, वो सेलिब्रेशन करती तो अनुज भी वहाँ पे देखता है पीछे छुप के, और फिर एकदम सामने आ जाता है तो अनुपमा घबरा जाती है। वो बताती है तो उसको मन में फिर एक गलत फहमी कि उसको लगता है यशदीप के साथ कुछ ऐसा। तो वो अभी देखे वो आगे क्या, वहीं पे शो भी खत्म हुआ। पर जो ब्रेकअप बताते हैं तो उसमें आज बहुत बड़ी बात बोलती है दिया अनुपमा से कि हम कितने भी मॉडर्न क्यों नहीं हो जाए, कितने भी फ्रैंक क्यों नहीं, जो भी हो पर मूव ऑन कर लो। पर जो 26 साल का इंतज़ार था वो एक तरफा जो प्यार है, यानी श्रुति के लिए कहा कि उसका एक तरफा प्यार, तो ये शादी अगर नहीं चली तो फिर तब भी शौक है आद्या के लिए। तो अनुपमा यहाँ सोचने पे मजबूर होगी। यहाँ फिर उधर ये भी दिखाते हैं कि उसको फीवर होता है शायद, तो अनुपमा ठंडे पानी की पट्टी कर रही होती है उसे, और वो उसके पास अपना यानी फ़ोटो भी देख लेती है आद्या के पास शायद वहाँ पे। तो वो और खुश हो जाती है अनुपमा कि मेरी बेटी के मन में मैं हूँ आज भी। और अनुज भी परेशान है, रो रहा है अनुज वो फ़ोटो देख के, शायद जलाना चाहता है क्या, क्योंकि बैक साइड में रखा है उसको उस फोटो को। तो क्या कहती होगी अनुपमा, शायद उससे बताती है क्या कि ये तुम शादी के बारे में लेके जो भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे दिया की बात का बहुत कुछ असर करता है अनुपमा पे, तो कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। और कि क्या करेगी अनुपमा, तो पॉजिटिव यानी अपने लिए सोचेगी या फिर नहीं सोचेगी तो नहीं अपने लिए। पर हाँ ये बात है कि वो अनुज को बोलेगी भी कि अगर प्यार नहीं करते, या फिर शायद वो श्रुति को भी समझाए कि अगर प्यार ही नहीं है तो फिर शादी का मतलब क्या। फिर ये आद्या की खुशी के लिए शादी कर रहे तो बाद में अगर नहीं चली शादी, तो ये बात वो शायद अनुज से कर सकती है। और अभी तो कंपटीशन की तैयारी की बातें कर रहे हैं उन लोग, और डायरी की बातें कि डायरी मेरी सारथी है और मैं पढ़ के जाऊँगी। तो आद्या फाड़ते हुए भी दिखी, तो देखते क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा वर्षा आपने कि जैसे जैसे हम शोज को देखते हैं तो हम भी समझने लग जाते हैं कि ये डायलॉग क्यों डाला गया है या ये सिचुएशन क्यों बताई गई है। तो सही कहा, जो टीटू और डिम्पी के बीच में वार्तालाप हुआ है उसका कुछ मतलब है आने वाली एपिसोड्स को लेके। तो ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली बढ़ती है जब हम वाकई में उसको फील करते हैं, उन सीन्स को देखते हैं, आगे पीछे सोचते हैं, तो ये चीजें हम अपने आप ही प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं। तो बहुत बढ़िया आपने अपना रिव्यू दिया है, थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज आद्या को देखा तो जो अनुपमा उसके लिए इतने प्यार से खाना लेकर आई वो उसे फेंकने जा रही थी, बट कान्हा जी का इशारा देखिए कि श्रुति उधर पानी पीने के लिए गिर जाती है और आद्या खाना फेंकते फेंकते रह जाती है। बाद में श्रुति का गिर जाना और अनुपमा आकर उसे संभाल लेती है। आद्या को ये सब देखकर फिर से पैनिक अटैक आ जाता है और वो सारा इल्ज़ाम अनुपमा पर लगा देती है कि ये सब कुछ जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ। आज अनुपमा ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा और वो बहुत अच्छे से उसने अपनी बेटी को संभाल लिया। अनुपमा ही है जो इस आद्या को संभाल सकती है और इसे ट्रॉमा से बाहर निकाल सकती है। सच में आज अनुपमा को एहसास हुआ कि उसकी बेटी कितनी तकलीफ़ में है। चाहे उसकी बेटी उससे नफ़रत ही क्यों ना करती हो, बट अनुपमा अपने प्यार से आद्या को ज़रूर ठीक करेगी और अनुपमा श्रुति की भी केयर करके उसे भी ठीक करके रहेगी। आज अनुज का देखा तो वो बहुत परेशान हो रहा था कि आद्या कहीं अनुपमा के साथ बुरा बर्ताव ना कर रही हो। उधर अनुज से बात करके अनुपमा और दोनों का मन हल्का हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अनुज को बहुत सुकून मिलता है कि जब वो पूछता है कि अनुपमा तुम ठीक हो, तो अनुपमा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो अनुज को परेशान नहीं करना चाहती ये सब बताकर। आज भी अनुपमा अपने अनुज की इतनी केयर और इतना प्यार करती है। आज दीपू का सीन देखा तो वो अनुपमा से मिलने की बात करता है, तो अनुपमा उससे मिलने जाती है तो वो पहले तो कहते हैं कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। उसमें अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। बाद में दीपू अपनी बात कहना चाहता है, बट अनुपमा उस समय इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि फिर वो वहाँ से चली जाती है। आज अनुज का आद्या को समझाना बहुत अच्छा लगा। जैसे आज अनुपमा ने अपनी बेबली के लिए कुकीज़ बनाई और अनुज ने आद्या को खिलाई। ये सब देखकर अच्छा तो लगा,
बट ये सब तुम पहले भी कर सकते थे अनुज। चलो कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। अब अनुपमा तुम्हारे पास है, अब तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। वैसे एक बात है कि जब भी अनुपमा अनुज के आसपास होती है तो अनुज में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज जब अनुपमा कहती है कि मुझे यशदीप सर से मिलने जाना है तो अनुज थोड़ा जेलस हुआ कि ये अनुपमा क्यों जा रही है। बाद में जब अनुज अपनी अनु को इतना खुश देखता है रसोई में, वो अपने लिए हलवा केक बना रही होती है, तो उसे बहुत प्यार से निहार रहा होता है, फिर उसे पीछे से आकर डराता है। बहुत अच्छे मोमेंट थे दोनों के। असली मज़ा तो कल आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे और एक दूसरे को अपने हाथों से हलवा केक खिलाएंगे। उधर आज फिर हमें केंजल और तोशु की लड़ाई झगड़ा ही देखने को मिला। केंजल अच्छी हो तो परी को लेकर इंडिया चली जाए और इस बदतमीज तोशु को भी साथ ले जाए। कम से कम कुछ टाइम के लिए अनुपमा को सुकून से जीने का टाइम तो मिले। आज प्रीके में देखा तो मुझे दिया की बातें बहुत अच्छी लगी, जो उसने अनुपमा से कही कि 26 साल का प्यार मरता नहीं है। वो यही कहना चाहती थी कि एक तरफा प्यार की शादी अगर नहीं चली तो आद्या को एक और शौक लग जाएगा। क्या वो शौक झेल पाएगी? पता नहीं अनुपमा को किस एंगल से लगता है कि मेरा अनुज श्रुति के साथ खुश है। आज अनुपमा का आद्या की केयर करते देख और अनुज का फ़ोटो खींचना जिसमें थू थू लिखा होता है, सच में बहुत ही बढ़िया मान फैमिली लग रही थी। अब अनुपमा को समझना चाहिए कि अनुज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह पाएंगे, वो श्रुति के साथ नहीं। अब जब तक अनुपमा इस घर में है तो उसे अपनी बेटी की नफ़रत और उसे गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और उसे प्यार से जीतना होगा। चाहे आद्या ने गुस्से में आकर अनुपमा की डायरी फाड़ दी, जो उसे कंपटीशन में बहुत हेल्प करने वाली थी, बट अनुपमा फिर भी कंपटीशन जीतेगी क्योंकि उसमें हुनर है जीतने का। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारी मान फैमिली पूरी हो जाएगी। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। थैंक यू। सही कहा आपने कुसुम जी कि आद्या ने खाना नहीं फेंका, कान्हा जी ने ये पाप आद्या के हाथों होने नहीं दिया, क्योंकि अन्न का अपमान बहुत बड़ा जो है निरादर है अन्न का। तो बढ़िया है आपका रिव्यू। बाकी आपको जो अनुज और अपना अनुपमा के मान के सीन्स है उनमें बहुत मजा आता है और आप सच में बहुत प्यार करती है मान की जोड़ी को, ये आपके रिव्यू से पता चलता है। तो थैंक यू सो मच आपका कुसुम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सहेलियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था। श्रुति को पानी पीना था, लेकिन ना तो कोई नर्स है और ना कोई मेड है। क्या कोई भी नर्स बिना बताए ब्रेक पर जाती है? श्रुति उठती है पानी पीने के लिए, लेकिन गिर जाती है। आद्या श्रुति को संभालती है, लेकिन तभी अनुपमा आती है और आद्या को दूर करके श्रुति को उठाती है और कहती है कि पानी पीना था तो आवाज़ लगा देते। अनुपमा डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जब मुड़कर देखती है तो आद्या को पैनिक अटैक में देखती है। भगवान जाने पैनिक अटैक है, ट्रॉमा है या फिजिकल इलनेस है या अनुपमा के लिए गुस्सा है। अनुपमा छोटी को संभालती है तो छोटी अनुपमा पे भड़क जाती है। मुझे तो लगता है कि यह आद्या सिर्फ अनुपमा को परेशान करने के लिए गलत इल्ज़ाम लगाती है, अपने मन की भड़ास निकालती है। अनुपमा आद्या को संभालती है। अनुपमा की बाहों में आकर आद्या बड़ी मुश्किल से शांत हो पाती है। अनुपमा श्रुति को भी संभालती है। उधर अनुज परेशान फ़ोन पर फ़ोन मिलाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अनुज घबरा जाता है। उसे ये फिक्र भी है कि आद्या अनुपमा के साथ कुछ गलत सलूक ना करे। अनुपमा मिस कॉल देखती है तो अनुज को फ़ोन करती है और कहती है कि सब ठीक है, आप आराम से गाड़ी चलाइए। यहाँ अनुज को अनुपमा की भी चिंता हो रही है, क्योंकि उसे आद्या की बदतमीजी का पता है। अनुपमा परेशान होती है तो अनुज को पता चल जाता है और अनुज परेशान होता है तो अनुपमा को पता चल जाता है। पता नहीं मान की इस जोड़ी को किसकी नज़र लग गई। यशदीप फ़ोन करके अनुपमा को बुलाता है। उधर तोशु, या कहें तो मक्कार तोशु, अपनी बेटी के एफडी के कागज़ ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके बिजनेस के लिए उसको पैसा चाहिए। तोशु ने पहले भी किंजल के पैसे चुराए हुए हैं,
तोशु मक्कार तो है ही, चोर भी है। अनुपमा को भी चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया था और अब बेटी के पैसों को चोरी करने जा रहा है। कितना गलत इंसान है। तोशु की मंशा किंजल कामयाब नहीं होने देती और उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। किंजल, अभी तो तुमने एफडी बचा ली, लेकिन तोशु फिर चोरी करेगा। ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही हो जो ना माँ का है, ना बीबी का है और ना बेटी का है। वो सिर्फ धरती पे बोझ है। अनुज आध्या को समझा रहा है। आध्या कहती है कि अनुपमा श्रुति की केयर ठीक से नहीं कर पा रही है। उस समय अनुज एक बेबी का एग्जाम्पल देकर कहता है कि हर बार गलती की नहीं जाती, गलती हो जाती है। आध्या कहती है कि आप उनको फिर डिफेंड कर रहे हैं, तो अनुज कहता है कि मैं हर बार सही बात को डिफेंड कर रहा हूँ। वेरी गुड अनुज, कम से कम छुपे शब्दों में तुमने ये तो कहा कि अनुपमा सही है और मैं अनुपमा को डिफेंड कर रहा हूँ। काश अनुज यही समझदारी तुमने 5 साल पहले दिखाई होती। 5 साल पहले आध्या को इसी तरीके से समझाया होता तो ना मान अलग होते, ना एक बच्ची से उसके माँ बाप अलग होते। अनुज 5 साल से आध्या को इसलिए नहीं समझा सका क्योंकि उसके पास अनुपमा थी ही नहीं। अब अनुपमा उसके घर में है तो उसे भी सही गलत समझाना आ गया। अनुज अनुपमा की बनाई कुकीज़ देता है और अनुपमा दरवाजे से छुपकर सब सुन रही है और ये बात अनुज को पता है कि अनुपमा यहाँ गलत नहीं है। काश यही विश्वास 5 साल पहले भी करा होता। अनुपमा अनुज से कहती है कि वो यशदीप सर के पास जा रही है, उन्होंने बुलाया है। अनुज की फेस रीडिंग अलग ही है और अनुपमा जब वो यशदीप से अनुपमा मिलती है तो यशदीप उसको बताते हैं कि बहुत से लोग आपकी सपोर्ट में उतर आए हैं और अनुपमा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है सुपरस्टार शेफ में। अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपना पूरा फोकस अब कुकिंग पे लगाऊंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। और देखो अनुपमा का पॉजिटिव एटीट्यूड। जब उसको पता चलता है कि 2 दिन बाद फाइनल है तो वो कहती है कि मुझसे और सुपरस्टार शेफ बनने की दूरी सिर्फ 2 दिन की है। यस, ऐसा ही होगा अनुपमा। अनुपमा बहुत खुश है और यशदीप उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। अच्छा हुआ नहीं कहा, शायद कान्हा जी की मर्जी थी। फिर वही पल, अनुपमा की खुशी, अनुपमा का हलवा केक बनाना और अनुज का सरप्राइजिंगली देखना बहुत अच्छा लग रहा था। ये लुका छुपी। अनुपमा की खुशी को अनुज छुप कर देख रहा है, लेकिन जब केक रेडी हो जाता है तो अनुज कांग्रेचुलेशन बोलता है और पूछता है कि खुशी किस बात की है। उसके ध्यान में यशदीप आता है और वो अनुपमा की खुशी को यशदीप से रिलेट करता है। अब प्रतीक्षा है कल के मान मूवमेंट की। तरस गए हम भी ये सब देखने के लिए। प्री कैप में अनुपमा आध्या के सिर पे पट्टी रख रही है और दिया अनुपमा से कह रही है कि 26 साल का प्यार कभी मरता नहीं। क्या एक तरफा प्यार की शादी चल पाएगी? क्या आध्या के लिए ये कोई एक और शौक तो नहीं होगा? पता नहीं इस बात का अनुपमा पर क्या असर होगा। अनुज अनुपमा को चीयर कर रहा है सुपरस्टार शेफ के लिए और आध्या अनुपमा के सारथी यानी डायरी को फाड़ रही है, जैसे 5 साल पहले अनुपमा से उसका सारथी छीन लिया था। मैम, मैंने आपका सुबह का वीडियो देखा था। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू रेखा जी। और सही कहा आपने कि नर्स कैसे चली जा सकती है बिना बताए हुए कि मैं 10 मिनट की ब्रेक लेने जा रही हूँ। ना तो श्रुति को पता है, ना अनुपमा को पता है, ना ही किसी और को, ना किसी मेड को पता है।
अनुपमा अगर पता होता तो अनुपमा श्रुति के आसपास ही रहती, या फिर अनुपमा को सबसे पहले श्रुति का ही ख्याल आता। तो अनुपमा को भी नहीं पता कि नर्स नहीं है, ना ही आद्या को पता है, तो ऐसे कैसे चलेगी। और आवाज लगाना जरूरी था श्रुति का, चाहे अनुपमा को लगाती चाहे आद्या को लगाती। अगर नर्स नहीं आ रही तो इन दोनों में से किसी को लगाती। आपका रिव्यू अच्छा है, आपने एक एक बात को पूरी तरह से खोल के डिस्कस किया है। तो बाकी दीपू का भी दिल के अरमा दिल में ही रह गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं, ये अरमा दिल में ही रहे तो अच्छा है। तो नहीं तो जैसे ख्याति जी, वर्षा, सब ने कहा है, कुसुम जी ने भी कहा है कि अब नहीं तो दोस्त खो देंगे इतना अच्छा। तो बढ़िया रिव्यूज है आप सबके, थैंक यू सो मच। और जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, जिस नंबर पे अपने रिव्यूज भेजने हैं, नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के HS कम्युनिटी की आवाज का। मगर उससे पहले HS कम्युनिटी के मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.